हेलो एवरीवन। सो आज ह्यूमन हार्ट कंप्लीट टॉपिक जस्ट within a 5 to 10 minutes I'll complete it with circulation of blood. Okay, so let's start. See, this is a human heart. This is a structural arrangement of human heart. We have 4 chambers in it. There are how many chambers? There are 4 chambers of human heart. These chambers are located here. This is right atrium. I'm writing here right atrium, while here is right ventricle, RV for right ventricle. Okay, here left atrium and left ventricle, left atrium and left ventricle. So how many chambers are there? So there are 4 chambers: right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. Okay, the upper structure is considered as aorta. This is aorta. There are 2 type of connection in the heart. These connections are considered as, one connection is pulmonary connection, while the other connection is systemic connection. When we talk about this pulmonary connection means heart and lung का connection. जब भी आपका हार्ट आपके लंग से कनेक्ट है, इस कनेक्शन को हम पल्मोनरी कनेक्शन बोलते हैं. एंड द अदर कनेक्शन इज सिस्टमिक कनेक्शन, हार्ट का टिश्यू से कनेक्शन. जब भी आपका हार्ट आपके टिश्यू से कनेक्ट है, उस कनेक्शन को हम सिस्टमिक कनेक्शन बोलते हैं. वन मोर थिंग यू मस्ट नो, whenever the blood comes in the heart, कभी भी जब ब्लड हार्ट के अंदर आ रहा है तो वो आता है किसके थ्रू? वेन के थ्रू. और कभी भी हार्ट के बाहर अगर ब्लड जा रहा है तो वो आता है किसके थ्रू? इट इज थ्रू आर्टरी. सो देयर आर 2 blood vessels, artery and vein. When blood goes out from the heart, it is through artery. Blood goes in the heart, it is through vein. Now see the connection. There is the connection with the lungs. So this is the heart and it is connected to lung. Therefore this veins and arteries are considered as pulmonary vein and pulmonary artery. If I am saying the blood goes out from this, it means blood जा रहा है हार्ट से लंग की तरफ. जब ब्लड जा रहा है, ब्लड हार्ट से लंग की तरफ किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी. क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया, क्या अभी बताया कि लंग और हार्ट के कनेक्शन को हम पल्मोनरी कनेक्शन बोलते हैं. हार्ट एंड लंग कनेक्टेड, पल्मोनरी. एंड ब्लड कहां जा रहा है? ब्लड जा रहा है बाहर, तो किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा. अब अगर मैंने बोला ब्लड आ रहा है वापस अंदर, तो किसके थ्रू आएगा? पल्मोनरी वेन. कनेक्शन समझ गए? कनेक्शन अगर समझ गए तो कभी गलती नहीं होगी, अदरवाइज अगर क्रैम करोगे तो फिर प्रॉब्लम आएगा. So there is pulmonary artery and pulmonary vein. Similarly here, this is the heart and now this heart is connected to what? This heart is connected to, सर करना है इसको ठीक. So this heart is connected to what? This heart is connected to tissues. When I say this heart is connected to tissue, so there is here, if I say the blood comes in और ब्लड गोज आउट. अब आपको अभी ऑलरेडी बताया मैंने, ब्लड जब आएगा अंदर हार्ट के तो किसके थ्रू? वेन के थ्रू. जब ब्लड हार्ट के बाहर जाएगा तो किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू. नाउ कनेक्शन कौन सा है? हार्ट और टिश्यू के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक कनेक्शन. वाइल ब्लड अंदर आ रहा है तो सिस्टमिक वेन के थ्रू. अब ब्लड जा रहा है बाहर तो क्या होगा? यहाँ पे आर्टरी होगा. कौन सा आर्टरी? सिस्टेमिक आर्टरी. आया कनेक्शन समझ? सो देयर आर 2 कनेक्शन, pulmonary and systemic. When tissue is connected to heart, then it is called systemic. ब्लड आ रहा है अंदर तो सिस्टमिक वेन, ब्लड जा रहा है बाहर तो सिस्टमिक आर्टरी. और जब पल्मोनरी है इसका मतलब लंग्स और हार्ट का कनेक्शन. ब्लड जा रहा है अंदर तो पल्मोनरी वेन, ब्लड जा रहा है बाहर तो पल्मोनरी आर्टरी. तो यू मस्ट नो दीज 2 connections and this. Okay, अगर ये पता है तो इसमें कभी प्रॉब्लम नहीं हो सकता. चलिए, इसके अलावा there are 2 vena cava. The upper one is called superior vena cava, while the lower is called inferior vena cava. Okay, so these are the 2 vena cavas, upper superior while the lower is inferior vena cava. अच्छा, इसके अलावा there are वॉल्व प्रेजेंट इन इट. सबसे पहले तो आपको वॉल्व का फंक्शन पता होना चाहिए. ओके, वॉल्व अगर कहीं पे टूटी है, टूटी खोल दी बंद होगी, टूटी खोल दी ब्लड निकल गया, पानी निकल गया, और टूटी बंद कर गई, इसका मतलब
ब्लड नहीं जाएगा। तो देयर आर वॉल्व्स का मतलब बंद और ओपन। तो बेसिकली ये करता क्या है, ये करता है बैकफ्लो ऑफ द ब्लड को प्रिवेंट। तो वॉल्व प्रिवेंट्स बैकफ्लो ऑफ ब्लड। अब देखो कहां है बैकफ्लो, सी देयर इज अ 3 cusps का मतलब there is a part, okay? So this valve is considered as which valve? Tricuspid valve. While this valve here, it is called bicuspid valve. The bicuspid valve is also called mitral valve. Which valve? Mitral valve. And one more valve which is present here, this valve is considered as semilunar valve. So how many valves are there? 3 type of valve present in a heart. One is tricuspid, the valve which is present between right atrium and right ventricle. राइट ऑट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है उसे हम क्या बोलेंगे? ट्राइकस्पिड वॉल्व. और जो लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व है उसे हम क्या बोलेंगे? बाइकस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड वॉल्व आल्सो कॉल्ड मिट्रल वॉल्व. नाउ देयर इज वन मोर वॉल्व व्हिच इज कॉल्ड सेमील्यूनर वॉल्व. कहां है? ये रहा राइट वेंट्रिकल. राइट वेंट्रिकल ये आगे जाके किससे कनेक्ट है? देखो राइट वेंट्रिकल किससे कनेक्ट है? ये है पल्मोनरी आर्टरी से कनेक्ट. तो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के जो बीच में वॉल्व होगा उस वॉल्व को हम क्या बोलेंगे? सेमील्यूनर वॉल्व. क्लियर हो गया? अब देखो नेक्स्ट वॉल्व्स के अलावा तो कितने वॉल्व बोले मैंने आप लोगों को? 3 वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड और सेमिल्यूनर वॉल्व. आफ्टर दिस सी 2 नोड्स आर प्रेजेंट. अब ये 2 नोड्स कहां हैं? देखो यहां पर है, एक यहां नोड है और एक यहां नोड है. राइट ऑट्रियम के अंदर अपर राइट कॉर्नर में इस नोड को बोलते हैं हम SA नोड. कौन सा नोड? SA नोड. और लोअर लेफ्ट कॉर्नर में जो नोड है उसे हम बोलते हैं AV नोड. सो देयर आर 2 नोड्स, वन इज SA नोड. SA नोड फुल फॉर्म इज सीनो auricular node, while the other one is AV node. AV node is atrioventricular node. Okay, so there are 2 nodes located in a heart in right atrium, upper SA node, lower AV node. Clear यहां तक? इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? 3 septums. How many septums are there? 3 in the heart. कहां है? देखो ये रहा ऑट्रियम, ये रहा ऑट्रियम. 2 ऑट्रियम के बीच में यहां पर 2 ऑट्रियम सेपरेट हो रहे हैं. ऑट्रियम सेप्टम का नाम इंटर ऑरिक्यूलर सेप्टम. वाइल 2 वेंट्रिकल सेपरेट हो रहे हैं. देखो ये रहा वेंट्रिकल सेपरेट हो गया. सो इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. ओके, नाउ देयर इज वन मोर सेप्टम. कहां है? देखो ये रहा ऑट्रियम, ये रहा वेंट्रिकल. ऑट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी तो सेप्टम होगा. इस सेप्टम को हम क्या बोलेंगे? आर्ट्रियो वेंट्रिक्यूलर सेप्टम. नेम से क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए. 2 ऑट्रियम के बीच में है तो इंटर ऑरिक्यूलर, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम. ऑट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है तो हम क्या बोलेंगे? आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ओके, सो दीज आर द 3 सेप्टम्स. इतना समझ में आया तो साथ साथ आप बता देना. अगर कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं. अदरवाइज ओके, सो दीज आर 4 चैम्बर्स. वॉल्व, 3 वॉल्व्स के नाम क्या बताए थे मैंने आपको? 3 वॉल्व्स के नेम, 3 वॉल्व्स. दीज वॉल्व्स आर, वन इज ट्राइकस्पिड वॉल्व, वन इज बाइकस्पिड वॉल्व एंड वन इज सेमील्यूनर वॉल्व. लोकेशन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं. ओके, सो दीज आर द 3 वॉल्व्स. सो 4 चैम्बर्स, 3 valves, 2 nodes, 3 septum which are present in heart, and this is the structural arrangement of heart. इतना क्लियर? आगे बढ़ते हैं. सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. एंड सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका. आफ्टर स्क्रीनशॉटिंग, नेक्स्ट पेज इज हियर. करना सर. Okay, no problem. Okay, no problem. I am erasing it then. पोस्ट कर दो फिर.
So completed chambers, heart. Now after this we are starting topic, one of the most important thing, that is circulation of blood in the heart. So how does blood is circulated in the heart? Next we are doing this. So this is circulation of blood in the heart. देखो जी, सबसे पहले कहां पे है ब्लड? ब्लड तो है टिश्यू में. ओके, तो ये हमने मेंशन किया, बॉडी टिश्यूज. ब्लड है बॉडी टिश्यू में. बॉडी टिश्यू से ब्लड कहां आ रहा है? बॉडी टिश्यू से ब्लड आ रहा है हार्ट में. कहां पे आएगा? बॉडी टिश्यू से आया राइट ऑट्रियम के अंदर. ओके, ब्लड कौन सा है? ये ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. विच ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कमिंग फ्रॉम टिश्यू टू राइट ऑट्रियम ऑफ हार्ट. अब आप बताओ कि कौन सा वेन होगा? अभी मैंने बताया था कि ब्लड आ रहा है अंदर, तो किसके थ्रू आएगा? वो तो वेन के थ्रू आएगा. कनेक्शन किसका किसका है? टिश्यू और हार्ट का. टिश्यू और कनेक्शन, टिश्यू और हार्ट के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टमिक बोलते हैं. तो वेन कौन सा होगा यहाँ पे? सिस्टमिक वेन. ओके, नाउ राइट ऑट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? राइट ऑट्रियम से ब्लड गया राइट वेंट्रिकल. बीच में क्या प्रेजेंट है? बीच में तो है ट्राइकस्पिड वॉल्व. फुल फॉर्म यूज करना आप शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना. ओके, ट्राइकस्पिड वॉल्व से ये राइट वेंट्रिकल से जाता हुआ ये कहां जाएगा? देखो यहां से ट्रैवल करता करता ये गया लंग्स में, चला गया. तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जा रहा है? ब्लड जा रहा है लंग्स के अंदर, चला गया. अब आप बताओ ब्लड कौन सा है? ब्लड तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही है, राइट. अब यहां पर देखो, जब कनेक्शन है तो हार्ट और लंग का कनेक्शन, हार्ट और लंग के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? हार्ट और लंग के कनेक्शन को हम बोलते हैं पल्मोनरी. सो दिस इज पल्मोनरी कनेक्शन. अब आप बताओ ब्लड कहां जा रहा है? हार्ट के बाहर के हार्ट के अंदर, हार्ट के बाहर जा रहा है. हार्ट से बाहर निकल के, हार्ट से बाहर निकल के ये तो ब्लड जा रहा है लंग्स में. ओके, तो क्या होगा? पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि मैंने बताया था आपको ब्लड बाहर गया तो आर्टरी, अंदर आया तो वेन. नेक्स्ट, अब लंग्स में क्या प्रेजेंट है? लंग्स में तो ऑक्सीजन है, सांस लो, ऑक्सीजन आ गया. ये ऑक्सीजन है हमारे लंग्स के अंदर. ऑक्सीजन किसके साथ मिला? ऑक्सीजन मिला ब्लड के साथ. कौन सा ब्लड बन गया? ब्लड बन गया ऑक्सीजनेटेड. सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ विच ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां से? लंग से. कहां जाएगा? वापस गया हार्ट के अंदर. कहां जाएगा? देखो जरा, यहां से होता हुआ ये आ गया लेफ्ट ऑट्रियम के अंदर, आ गया लेफ्ट ऑट्रियम में. अब आप बताओ कौन सा वेन होगा? ब्लड आ रहा है अंदर तो वेन. कनेक्शन का नाम पल्मोनरी कनेक्शन. ओके, क्योंकि कनेक्शन हार्ट और लंग का कनेक्शन है तो पल्मोनरी वेन. ओके, लेफ्ट ऑट्रियम से कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल. लेफ्ट ऑट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये ब्लड जाएगा बैक साइड से होता हुआ कहां पे? आयोटा के पास. कहां गया? आयोटा के पास. सो लेफ्ट ऑट्रियम वेंट्रिकल से कहां गया? आयोटा. और आयोटा से होता हुआ बैक साइड से किससे कनेक्ट है? सिस्टमिक आर्टरी से. सो आयोटा के बाद क्या आया? ये लिखा हमने यहां पे सिस्टमिक आर्टरी. और सिस्टमिक आर्टरी से होता हुआ ब्लड कहां जाएगा? ब्लड पहुंच गया वापस बॉडी टिश्यूज के अंदर. सो टिश्यू से ही ब्लड निकला और टिश्यू में ही वापस आ गया. बट ब्लड कौन सा टिश्यू से आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जा रहा है? लंग्स में जा रहा है. लंग्स में क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन प्रेजेंट है. क्या बन गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन गया. ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां जाएगा? वापस बॉडी टिश्यू में चला गया. बट ये जो सर्कुलेशन है यहां पे 2 बार सर्कुलेशन हो रहा है. हाउ मेनी टाइम्स दिस इज सर्कुलेटिंग? देयर आर 2 टाइम्स इट इज सर्कुलेटिंग. दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड एज डबल सर्कुलेशन. Okay, and in this double circulation there are 2 circulation. One circulation is considered as pulmonary circulation while one is called systemic circulation. क्लियर मेरी बात? सो वन इज पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं तो आप कौन कौन से लिखेंगे? सी लिखना खुद. हर चीज पकी पिकाई खिचड़ी भी नहीं मिलनी चाहिए, खुद भी मेहनत करनी चाहिए बच्चों को. सो पल्मोनरी सर्कुलेशन में आप क्या कौन कौन से पॉइंट्स लिखेंगे? फर्स्ट पॉइंट दिस. देखो मैं थोड़ा पेन चेंज करके बताता हूं आपको. पेवला ले लो. चलो, राइट वेंट्रिकल से ब्लड आया, कहां चला गया? लंग्स में. फर्स्ट पॉइंट. तो कैसे लिखोगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी. फर्स्ट पॉइंट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन. सेकंड पॉइंट ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन ये रहा. देखो अब कौन सा ब्लड है यहाँ पे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम लंग टू लेफ्ट ऑट्रियम. किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन के थ्रू. सो these are the
2 points of pulmonary circulation. You must mention this. Next is systemic circulation. The systemic circulation, the first point, body tissue से blood आ रहा है. कौन सा ब्लड आ रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड. कहां जा रहा है? राइट ऑर्ट्रियम में. कैसे मेंशन करोगे? डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द राइट ऑर्ट्रियम ऑफ द हार्ट थ्रू सिस्टमिक वेन. सिमिलरली सेकंड पॉइंट, कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कहां से गया, कहां पे आया? यहां से गया, आएगा. देखो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट टू द aorta and then to body tissue through systemic artery. These are the 2 points of systemic circulation. There are 2 type of circulation in the blood, hence called double circulation. तो ये लेक्चर होता है यहां पर समाप्त. होप आपको क्लियर हो गया सब. फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट लेना है, कोई भी प्रॉब्लम लेना है, तो आप कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी.